Gurudev, in the Lakshmi Ashtotra, Lakshmi is described as being born out of anger, and yet she is revered as the very embodiment of grace, gentleness, and serenity. How do we understand this? When do you get angry? When you are a perfectionist and you see imperfection around you, you get angry. When you are lover of dharma, when there is adharmic thing happening around you, you get angry. Right? So, that anger, if it is in your control, it is a big motivating factor. It keeps things in order. Anger is just one of the weapons. Nature has provided it to you. So, Lakshmi comes only with perfection. And so, perfection means anger towards imperfection. Lakshmi comes with dharma. That is anger towards adharma. So, it's quite natural. An adharmic person cannot get angry so easily. Because and it is not an authentic anger. Because adharmic person will always feel guilty inside. No righteousness. Anger comes with righteousness. So, Lakshmi is born out of righteousness. So it's said Krodha Sambhava. Gurudev, could you Don't take this as a thing that, oh, you should get angry to get. Anger can also bring Lakshmi also. Too much anger, if you have anger, it can also bring poverty. Don't think it's always like that, no. Here it's one of the qualities. And there are many, you can never take it in isolation. There are many other, Shanta, that is also one, is very calm, serene. Lakshmi comes out of cleanliness, serenity. All this is what wealth brings to you. What? Cleanliness brings health. Health is the best wealth. Right? Patience, faith, all this brings prosperity. If you don't have patience, you can never be prosperous. Yeah? No. Gurudev, could you please speak about the art of making a wish? Wish comes up in you, you only need to select them, that's all. So many wishes come into your head, but your intellect will select. When it selects, then there is a doubt that comes with it. Oh, will this happen or not? How will the doubt means low energy. So how will the doubt go? When your energy is higher, you are able to get rid of doubt. That is vikalpa. When doubt goes away and you put your attention on that, not just putting attention and keeping quiet, but acting on it, yeah, is the procedure, right? Is the way. Okay. Done? हिंदी में दो हिंदी में और थोड़ा ध्यान करेंगे. Oh. गुरुदेव, मैं उत्तर भारत से हूँ. कहा जाता है कि वर महालक्ष्मी पूजा परिवार की परंपरा में हो तभी करनी चाहिए, लेकिन अगर यह पूजा करने का मन है तो इसे कैसे और किस विधि से शुरू करना चाहिए? ना, वो कोई दिक्कत नहीं है. पूजा होती तो बैठो, हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी बोलो. भगवान को ध्यान से बड़ा पूजा नहीं, ध्यान से बढ़कर कोई पूजा नहीं है. वो पूजा हो तो उसमें भाग लेना, अपना आँख बंद करके बैठना, वही पूजा है. ठीक है ना? मंत्रों को सुनना, उससे स्नान करना पूजा होती है.
वरमहालक्ष्मी की व्रत तो यहाँ दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा, तेलंगाना में 4 स्टेट में होता है। केरला में नहीं होता है। केरला में नहीं, मुख्य तौर से यहाँ गवर्नमेंट हॉलीडे भी है। यहाँ कल इधर जैसे गणपति का हॉलीडे वहाँ छुट्टी मिलती है, ऐसे इधर महिलाएं करती है, माने लक्ष्मी तुम वर दो, ऐसे गृह लक्ष्मी बोलती है। ये गृह लक्ष्मियों की पूजा है, घर की महिलाएं करती है। कलश में चावल भरकर, पका हुआ चावल है, कच्चा चावल भरकर उसमें उसके ऊपर नारियल रखती है। वो बोलती है धान्य और धन सब संपत्ति हमारे घर में आए और निरंतर यहाँ रहे, इस तरह से प्रार्थना करके करते हैं। और पूजा के बाद उसी चावल से जन्माष्टमी आ गई, अभी 8-10 दिन बाद, 10-15 दिन बाद जन्माष्टमी आती है ना, उसी चावल से जन्माष्टमी के दिन वो बनाते हैं, क्या चकली वगैरह, जो खाने की जो नमकीन मीठा सब उसी चावल से बनता है और उसको भगवान कृष्ण को चढ़ाते, भोग चढ़ाते। ये सब प्रथा पद्धति चली आ रही है, बहुत पुरानी पद्धति है। महिलाओं को घर में बिजी रखने के लिए, वैसे तो बहुत बिजी रहती है तो महिलाओं को उत्सव, घर में उत्सव मनाते रहे। तो वरलक्ष्मी का भी ऐसे, लक्ष्मी को घर में बुलाओ, मैंने घर को स्वच्छ रखो, मन को स्वच्छ रखो। और वर दिया है लक्ष्मी ने, महावर दिया, महावर को वर दिया है ना। मैंने लक्ष्मी ऐसे नहीं आके देख के नहीं चले गए, विंडो शॉपिंग जैसा नहीं है। लक्ष्मी वर दे रही है, आप ये मान लेना। इसलिए वर महालक्ष्मी। ये वर वधु, हिंदी का वर वधु बोलते ना, वो नहीं है। वर माने वरदान। हाँ, वरदान मिला हुआ है हमें, ये मांग रहे, वर मांगते हैं। जो लक्ष्मी सबको वरदान देती है उन्हीं को वर महालक्ष्मी। ऐसा प्रथा है, पद्धति है, करो, ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी करे। भगवान की स्तुति के लिए कोई फरेज नहीं है, सब कर सकते। गुरुदेव, जब कोई कठिन चीज़ जो हमारे लिए अच्छी है हम उसे करते हैं, तो आपने कहा उस तप का बहुत महत्व होता है। पर अगर वो चीज़ बाद में सुखदायी और सरल हो जाए, कठिन ना लगे, तो फिर भी उसको तप कहा जाएगा? जब चीजें सरल हो गया तो तप से ऊपर उठ गए, तप हो गया, खत्म हो गया तप। हाँ, मगर फिर भी तप करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है।